Hello friends, today we'll do another video of MCQs which is important for all upcoming nursing exams. So please like, share and subscribe my channel. So first question is additional amount of calorie that should be taken by a pregnant woman. एक pregnant woman को कितना कैलोरी लेना चाहिए during pregnancy? Option A 300 calorie, B 500, C 1000 calorie and D 100 calorie. So right answer is 300 calorie. So here we'll see the detail. एडिशनल एनर्जी रिक्वायरमेंट ड्यूरिंग मदरहुड इन कैलोरी कितना होता है? एक सेडेंट्री वुमेन का 1875 माना गया है, सेडेंट्री वुमेन, और प्रेगनेंसी में ये इंक्रीज हो जाता है, प्रेगनेंसी में 300 इंक्रीज हो जाता है, सो 2175 हो गया है। लैक्टेशन में इसका रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाता है, दैट इज 550 एंड लैक्टेशन में भी 1 to 6 मंथ का है और आफ्टर 6 मंथ 400. सो दिस इज द रफ आइडिया फॉर कैलोरी रिक्वायरमेंट. प्रेगनेंसी में 300, लैक्टेशन 1 to 6 मंथ में है 550 एंड आफ्टर 6 मंथ 400. सो द आंसर इज ऑफ द क्वेश्चन इज 300 कैलोरी. Additional amount of calorie that should be taken by a pregnant woman, 300 calorie. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोल्डन कलर ऑफ amniotic fluid इज सीन इन. गोल्डन कलर का amniotic fluid किस कंडीशन में देखा जाता है? ऑप्शन ए RH इनकम्पैटिबिलिटी, ऑप्शन बी फीटल डिस्ट्रेस, ऑप्शन सी पोस्ट मेच्योरिटी एंड ऑप्शन डी इंट्रायूट्राइन डेथ. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए RH इनकम्पैटिबिलिटी. जब मदर RH पॉजिटिव होती है, मतलब ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव और बेबी का नेगेटिव में होता है, दैट इज RH इनकम्पैटिबिलिटी, और उस कंडीशन में गोल्डन कलर amniotic fluid देखा जाता है. सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. स्ट्रोक नॉर्मल amniotic fluid का कलर स्ट्रोक कलर में होता है. ग्रीन कलर है दैट इज मेकोनियम स्टेन. येलोइश ग्रीन है पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. अगर येलोइश ग्रीन का amniotic fluid है दैट मीन्स पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी. तंबाकू जूस कलर जैसा है तो आयु डेथ, इंट्रायूट्राइन डेथ, एंड गोल्डन कलर है दैट इज RH आइसो immunity and incompatibility. Next question is one of the hazard during inducting injection pitocin. एक हेल्थ hazard बताना है आपको इंजेक्शन pitocin. इंजेक्शन pitocin is the oxytocin. So option A elevated blood pressure, option B infection, option C rupture of uterus and option D early rupture of membrane. So right answer is rupture of uterus. इंजेक्शन pitocin और इंजेक्शन ऑक्सीटोसिन बोथ आर सेम. उसको देने से rupture of uterus के चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाते हैं. There are the 8 risks of injection pitocin. 1 is higher chance of C-section. 2 more likely to get an epidural. 3 more likely to develop a fever. Hyperstimulation of the uterus, fetal heart deceleration or distress, more likely to retain placenta, difficulty establishing breastfeeding in the first few hours, and last one is poor long-term motor development in babies. So these are the some hazards related to injection pitocin जो हमारा ऑप्शन है that is rupture of uterus. Next question, the most difficult time to diabetes during maternity cycle is. अगर gestational diabetes है मदर को तो लेबर का कौन सा या जो उसका पीरियड चल रहा है प्रेगनेंसी का कौन सा फेज विल बी मोस्ट डिफिकल्ट? ऑप्शन ए फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन बी लास्ट ट्राइमेस्टर, ऑप्शन सी लेबर एंड डिलीवरी, ऑप्शन डी इज प्यूपेरियम. सो राइट आंसर इज लेबर एंड delivery. Labor and delivery is the most difficult time if the mother have diabetes. So hyperglycemia का fetus पे क्या असर होता है? अगर mother has gestational diabetic mother है, so fetal will be fetal hyperglycemia. fetus का
पहले से ही हाइपरग्लाइसीमिया होगा, impaired GTT glucose tolerance will be impaired, and macrosomia or hypoglycemia. So these are the condition related to risk of gestational diabetes, and labor and delivery will be the most difficult time to manage during diabetes. Next question is, which of the following is restricted for a patient scheduled for an intravenous pyelogram? पेशेंट का इंट्रावीनस पायलोग्राम होना है और क्वेश्चन में पूछा है कि व्हाट डाइटरी कंटेंट शुड अवॉइड बिफोर दिस टेस्ट. ऑप्शन ए सॉल्ट इंटेक, ऑप्शन बी फ्लूइड इंटेक, ऑप्शन सी यूज ऑफ तंबाकू, एंड ऑप्शन डी फिजिकल एक्टिविटी. सो राइट आंसर इज fluid intake. Patient has to limit fluid intake because this intravenous pyelogram it's a X-ray. एक डाई को इंजेक्ट किया जाता है, फिर उसके बाद एक एक्सरे विजुअलाइजेशन किया जाता है यूरिनरी सिस्टम का, जस्ट लाइक फॉर दिस इमेज. सो फ्लूइड को रिस्ट्रिक्ट करना है बिफोर दिस टेस्ट कि बाद में यूरिन मैक्चुरेशन का अर्ज मतलब जल्दी ना हो, अदरवाइज डाई विल एक्सक्रीट आउट. So before this test, patient has to avoid fluid intake. Question is, a green stick fracture is. A green stick fracture क्या होता है? Option A, a fracture at right angle of bone. Option B, an incomplete fracture in which the bone is bent. C option, a fracture in which bone fragment into serva. And option D is bone and are no longer touching. So right answer is option B, an incomplete fracture in which the bone is bent, just like image कि bone completely fracture नहीं होती है, it's incomplete and bone can bend. अगर उसको bend करेंगे तो it can bend just like the एक जो green पार्ट होता, कोई भी ग्रीन लकड़ी होती है, जो सूखी हुई लकड़ी नहीं, ग्रीन लकड़ी, और उसको तोड़ने पे जो बैंट हो जाती है, कंप्लीटली वो ब्रेक नहीं होती है, बैंट हो जाती है, जिसको ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर वही होता है, और ये मोस्टली बच्चों में होता है. सो इनकम्प्लीट फ्रैक्चर इन विच द बोन इज बैंट इज कॉल्ड ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर. नेक्स्ट, which of the following medication would the nurse anticipate the physician would order to increase the blood pressure for a patient with septic shock? एक patient है septic shock का, so as a nurse what you will anticipate कि किस तरीके का medicine doctor should advise in notes. Option A atropine, option B dopamine, option C dioxin, and option D is nitroglycerin. So right answer is option B dopamine. Dopamine can be advised by a doctor in management of septic shock. So dopamine एक vasopressor होता है, vasopressor which constricts the blood vessels. So in sepsis सबसे जो फर्स्ट लाइन ड्रग होती है दैट इज नॉन एपिनेफ्रिन, लेकिन नॉन एपिनेफ्रिन हमारे ऑप्शन में नहीं है. नॉन एपिनेफ्रिन sepsis guideline recommend non-epinephrine as a first line drug. Second is vasopressin, epinephrine. Second is epinephrine and third is dopamine. So dopamine हमारे ऑप्शन में है, so we'll mark as dopamine is the drug. And fourth line also phenylphrine. So first is non-epinephrine, second epinephrine, third is dopamine, and fourth is phenylphrine. These are the some drugs can be advised by the doctor in management of septic shock. Next, which one following is not a manual mobilization technique used while performing chest physiotherapy? चेस्ट फिजियोथेरेपी की कौन सी टेक्निक मैनुअल नहीं है? आपसे ऑप्शन में पूछा है कि विच इज टेक्निक इज नॉट मैनुअल. ऑप्शन ए कफिंग, ऑप्शन बी क्लैपिंग, ऑप्शन सी परकशन एंड ऑप्शन डी वाइब्रेशन. सो राइट आंसर इज वाइब्रेशन. वाइब्रेशन इज अ नॉट मैनुअल टेक्निक. इसको विद द हेल्प ऑफ मशीन किया जाता है. दिस इज द मशीन विच इज यूज्ड फॉर द वाइब्रेशन.
बेसिकली जो रिहैब वगैरह के पेशेंट होते हैं जिनको रिहैब करना होता है, ये उसमें यूज होता है मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए. सो राइट आंसर इज वाइब्रेशन. नेक्स्ट इज द मेजर क्राइटेरिया फॉर डायग्नोसिस ऑफ रूमैटिक फीवर इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट. रूमैटिक फीवर को डायग्नोस करने में मेजर क्राइटेरिया कौन सा है, एक्सेप्ट पूछा है, मतलब कौन सा नहीं है वो आपको बताना है. सो देयर आर 2 टाइप ऑफ क्राइटेरिया टू डायग्नोस दी रूमैटिक फीवर. एक होता है मेजर क्राइटेरिया और एक होता है माइनर क्राइटेरिया. सो हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए कार्डाइटिस, ऑप्शन बी फीवर, ऑप्शन सी इज कोरिया एंड ऑप्शन डी सबक्यूटेनियस नोड्यूल. सो हमारे क्वेश्चन का आंसर है फीवर. फीवर इज नॉट अ मेजर क्राइटेरिया, दिस कम्स इन माइनर क्राइटेरिया. सो मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या आते हैं, केसेस से हम इसको निमोनिक पढ़ सकते हैं, केसेस से हम इसका मेजर क्राइटेरिया याद रख सकते हैं रूमैटिक फीवर का. के इज कार्डाइटिस, A is arthritis, S is subcutaneous nodule, E erythema mesenteric and S syndrome chorea. So these are the major criteria. अगर ये 5 पॉइंट में से 2-3 पॉइंट भी प्रेजेंट है तो इट कैन बी गोइंग टू दी रूमैटिक फीवर सिचुएशन. माइनर क्राइटेरिया में आता है सबसे पहले फीवर, रेज्ड ESR-CRP, आर्थेल्जिया, प्रोलॉन्ग PR इंटरवल एंड प्रीवियस RF. RF factor is rheumatoid factor. So our answer is fever. Next question, which of the following virus cause post transfusion hepatitis? Post transfusion hepatitis कौन सा वायरस करता है? ऑप्शन ए हेपेटाइटिस ए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस बी, ऑप्शन सी हेपेटाइटिस सी एंड ऑप्शन डी इज हेपेटाइटिस डी. सो राइट आंसर इज हेपेटाइटिस सी. हेपेटाइटिस वायरस कैन कोज, हेपेटाइटिस सी वायरस कैन कोज ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस. हेपेटाइटिस सी. नेक्स्ट, which one of the following action would a nurse take first when caring for a patient experiences cardiac arrest? अगर कोई cardiac arrest का patient है, नर्स एज ए नर्स आप कौन सा काम सबसे पहले करेंगे? ऑप्शन ए इनिशिएट कार्डियक मॉनिटरिंग, बी प्रोवाइड इंट्रावेनस असेस, सी एस्टैब्लिश एन ओपन एयरवे एंड डी ऑब्टेन ए पल्स ऑक्सीमेट्री रीडिंग. सो राइट आंसर इज सी. कुछ भी कंडीशन है कार्डियक अरेस्ट का, मतलब कोई भी आपको प्रायोरिटी डिसाइड करना है तो सबसे पहले एयरवे में जाता है. प्रायोरिटी शुड बी ऑलवेज दी एयरवे. सो सब ये दीज आर दी सम स्टेप्स ऑफ बेसिक लाइफ सपोर्ट. कॉल द पेशेंट बाय नेम, चेक कैरोटिड पल्स, देन लिफ्ट चिन, चेक ब्रीदिंग एंड एयरवे क्लियरेंस. सो सबसे पहले प्रायोरिटी एयरवे को देना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रैक्चर ऑफ डिस्टल रेडियस इज कॉल्ड. अगर डिस्टल रेडियस बोन में फ्रैक्चर है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए ह्यूम फ्रैक्चर, ऑप्शन बी मोंटिजा फ्रैक्चर, ऑप्शन सी ग्लेजी फ्रैक्चर एंड ऑप्शन डी कोलेज फ्रैक्चर. सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी कोले फ्रैक्चर. सो ये जो फ्रैक्चर होता है इट्स डिपेंड ऑन दी लोकेशन ऑफ फ्रैक्चर, कि रेडियस में भी कहाँ पे, डिस्टल रेडियस में भी कहाँ पे फ्रैक्चर है. सो कैन यू सी द इमेज? कोलेज फ्रैक्चर, दिस इज द डोर्सल बार्टन, दिस इज द स्मिथ फ्रैक्चर एंड दिस इज वोलर बार्टन, रिवर्स बार्टन. सो आपसे इनके नाम भी पूछ सकते हैं कि कोई भी फ्रैक्चर पूछ लेंगे और ये कौन सी बोन में होता है ये भी पूछ सकते हैं. सो ऑल आर कैन अकर इन कॉमनली डिस्टल रेडियस में होते हैं ये सारे. नेक्स्ट, इन विच सर्जरी पार्ट ऑफ स्टमक इज रिमूव्ड एंड रिमेनिंग पोर्शन और एनास्टमोसिस टू द डिओडेनम. कौन सी सर्जरी में एब्डोमेन का पार्ट रिमूव करके डिओडेनम के साथ एनास्टमोस कर दिया जाता है? ऑप्शन ए गैस्ट्रोजिज्नोस्टमी, ऑप्शन बी गैस्ट्रोडिनोस्टमी, ऑप्शन सी गैस्ट्रेक्टमी एंड ऑप्शन डी इज एंडोस्कोपिक म्यूकोजल रिसेक्शन. So right answer is option B, gastroduodenostomy.
So this is the image की distal portion of the stomach resect करके it's directly sutured with the duodenum. So this is called gastroduodectomy. Next, a nurse is expected to find all the symptoms in GB, Guillain-Barré syndrome, एक्सेप्ट कौन सा सिम्टम गुलियन-बार सिंड्रोम में नहीं होता है? ऑप्शन ए हाइपरटोनिया, ऑप्शन बी एरिफ्लैक्सिया, ऑप्शन सी पैरास्थीजिया एंड ऑप्शन डी इज यूरिनरी रिटेंशन. सो राइट आंसर इज ऑप्शन ए hypertonia. Hypertonia does not occur in Guillain-Barré syndrome or GB syndrome. So Guillain-Barré syndrome में क्या क्या symptom typically comes rapidly over days? First, rapid muscle weakness. Muscle weakness होगा. Pain in limbs and spine. Lower limbs में pain शुरू होता है and it goes to the spine. Then paralysis of leg, arms and facial muscle. Chest muscle weakness and difficulty speaking and swallowing. Last one is abnormal sensation like tingling. Tingling जैसा फील होता है पेशेंट को. तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम. थैंक यू.